Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, this is the series of revision, and in this series you will learn the revision of heredity and evolution part 5. Apart from this video, you have 1 to revision number 1 to 4. In revision number 1, you have learned the question number 1 to 8. In revision number 2, you have learned the question number 9 to 15. In revision 3, you have learned to 16 to 24 question. And in the last revisional video, that is in revision number 4, you have learned the revision of 25 to 33. It means there are a series of revision and that revision is actually over. I hope your notes regarding that series of revision is ongoing also, and I hope you have also clear your concept and prepare yourself for the upcoming examination. This is concept basis question. And this may create several problems if your concept is not clear. So in order to clear your concept, you need to focus on the minute things that are present inside the overall explanation, as well as the different kinds of long and short types question. In long type questions, if there is any concepts that are almost missing by you during the revision or during the common learning process, then you are unable to write the full explanation. So you need to focus on the concepts only. In order to overcome the problems of concepts and the related problems and related topics, here you have a series of revision in which I have selected the MCQs, fill in the blanks, true and false type question, and many kinds of question that actually related to the concepts only. After that, I will bring you the 2 marks, 3 marks and 5 mark question. It means the short and long type question. So through a series of revision, let back to the portion of heredity and evolution, the series number 5, the revisional series number 5 for the particular lesson. Why the lesson become longer? Because the lesson is very important. As you all know, the portion of evolution is no more in our syllabus, and this portion is no more in our syllabus. Only the heredity is in our syllabus. So all about the revision is based on the heredity topic, in which MCQs is going on. Now back to the next revisional question, that is question number 33. Question number 33 onward in this video lecture. This is the part 5 video, and due to this video you will actually clear your concept regarding MCQs, and in from after that video, after this video, I will bring you the concepts of fill in the blanks, true false, assertion, region types question. So be with the video lecture till ends, and I hope you have a copy pen in order to note down the important concept regarding the heredity and evolution. Now back to the question number 33 onward, that is question number 34. Now the question number 34, the question number 33, that was the last question in previous video lecture, and that is clear. All about the question number, all about up to question number 33 is clear in previous video lecture, that is in part 4 video lecture, and this is part 5. In this video lecture you will learn the question number 34 onward. So let us talk about the question number 33 first. Traits in organisms influenced by, लास्ट टाइम मैंने बताया था बोथ पैरेंटल एंड मैटरनल, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, ये लास्ट का सी ऑप्शन था, ठीक है, सी बताया भी गया था. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे. सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स. कह रहा है कि ऐसे ग्रुप्स को बताइए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर को शेयर कर रहे हो. आई होप ये प्रीवियस वीडियो में ही हो गया था. अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. 2 इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. अगर 2 इंडिविजुअल्स एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हो, 2 इंडिविजुअल्स है, दोनों अगर दोनों का स्पीसीज एक है, दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हो, तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, ठीक है. दोनों एक ही स्पीसीज से, दोनों होमो सेपियंस हो, ठीक है, दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हो, तो दोनों का कैरेक्टर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, सबसे ज़्यादा कैरेक्टर शेयर करेंगे. 2 इंडिविजुअल्स, आगे का जो ऑप्शन है, 2 इंडिविजुअल्स अलग अलग हो, ठीक है, सेम जीनस से हो. जीनस जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पहले जीनस होता है फिर स्पीसीज होता है. स्पीसीज मोर क्लोजर होते हैं
जीनस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर अगर सेम हो, टू इंडिविजुअल्स हो सेम ऑर्डर के हो, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप भी प्राइमेटा हैं, आप भी प्राइमेट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन प्राइमेट्स हैं, लेकिन मंकी भी प्राइमेट्स है, आप भी प्राइमेट्स हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप में और मंकी में कितनी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन आपका जो जीनस है, ठीक है, होमो, अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी होमो है, तो दोनों का कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होगा। तो यहाँ पे जीनस सेम होने से कोई मतलब नहीं है। स्पीसीज अगर क्लोज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो वो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, बाकी सब सारा ऑप्शन जो है गलत है। ये पिछले वीडियो में ही बताया गया था, क्वेश्चन रिपीटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। विच वन इज पॉसिबल इन F2 जनरेशन ऑफ अ प्योर ब्रीड टाल राउंड सीड शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल्ड सीड। कह रहा है कि अगर एक प्योर ब्रीड टाल है, इसमें आपको जानना प्योर ब्रीड टाल का मतलब क्या होता है। प्योर ब्रीड टाल का मतलब कैपिटल टी, ठीक है। इसका क्रॉस किससे हो रहा है, इसका क्रॉस हो रहा है प्योर ब्रीड टाल विथ राउंड सीड, यानी कि ये भी राउंड सीड में कैपिटल आर है, ठीक है। ये सीड के लिए भी राउंड है, सीड शेप के लिए भी डोमिनेंट है, और प्लांट्स के हाइट के लिए भी डोमिनेंट है, ठीक है। अब आगे इसका क्रॉस किससे हो रहा है, शॉर्ट पी प्लांट विथ रिंकल्ड सी, यानी कि शॉर्ट पी प्लांट्स के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं, और रिंकल्ड सीड के लिए क्या, स्मॉल आर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल आर मैंने कर दिया, स्मॉल आर। तो इसका क्रॉस जो है, यहाँ ध्यान देना है, इसका क्रॉस जो है इससे हो रहा है। तो जब क्रॉस होगा तो उससे पहले क्या बनेंगे, सबसे पहले गैमिट्स बनेंगे। तो उससे एक तरह का गैमिट्स बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, और इससे भी एक तरह का गैमिट्स बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल टी बनेगा, स्मॉल आर बनेगा। अब यहाँ पे मैं क्रॉस दिखा रहा हूँ। अब इसका जब क्रॉस होगा तो क्या होगा, अब ये वाला जो जीन है कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका अगर क्रॉस होगा किससे, स्मॉल टी स्मॉल आर वाले से, तो प्रोजिनी कैसा बनेगा, प्रोजिनी बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि इनका जीनोटाइप तो मिल गया, इसका फिनोटाइप क्या होगा। देखो, एक ही कैपिटल टी इनफ होता है किसी को टाल बनाने के लिए, तो इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, टाल। और सीड का शेप कैसा हो जाएगा, एक ही कैरेक्टर्स एक ही जीन्स इनफ है इसको राउंड बनाने के लिए, तो इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड। यानी कि अगला जो जनरेशन होगा वो F1 में टाल राउंड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वन पॉसिबल प्रोजेनी इन F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन में पूछ रहा है पॉसिबल प्रोजेनी। अब ये F2 में क्या होगा, F2 में डिपेंड करेगा कि इसी का क्रॉस जो है इसी से करवा दें, तो इससे हमको 4 तरह के जीन्स गैमिट्स पहले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 4 तरह के गैमिट्स बनाने पड़ेंगे, तो हमको कैसा गैमिट्स बनाना पड़ेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे कितने तरह के गैमिट्स बनेंगे, 4 तरह के। कौन कौन, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है, एक गैमिट्स ये हो गया। अब क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, दूसरा गैमिट्स फिर क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। यानी कि इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो 16 खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। 16 खाने बनाने पड़ेंगे, और सबको पता है 16 खाने पुनेट के स्क्वायर में बने थे, ठीक है। 16 खाने जब बनेंगे तो उनका जो पॉसिबल जो है फिनोटाइप आएगा वो उसी के बेस पे हम बनाएंगे, ठीक है। 16 खाने बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये गैमिट्स को बार बार लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर यही चीज़ कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर। देखो एक खाने और यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, एक खाना और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, एक खाने यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे इससे तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी
और क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। अब क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं, कैपिटल टी ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे जब करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखो कैप स्मॉल टी स्मॉल आर है, यहाँ पे भी स्मॉल टी स्मॉल आर है, तो भरा क्या जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। यानी कि हमको जो फिनोटाइप मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, कह रहा है कि टाल प्लांट विथ राउंड सीड, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो टाल प्लांट राउंड सीड मिल गया। अब आगे ऑप्शन में क्या दिया है, टाल प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, तो टाल प्लांट रिंकल्ड सीड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो ये प्रोजिनी कैपिटल टी स्मॉल आर टाल प्लांट रिंकल्ड सीड मिलेगा। शॉर्ट प्लांट राउंड सीड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शॉर्ट प्लांट राउंड सीड यहाँ पे मिल गया। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्रॉस के लिए आप तैयार रहे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इसके लिए गैमिट्स यही सब बनाने पड़ेंगे। ठीक है, करना क्या है कि बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, टी वाले को अलग कर देंगे, आर वाले को अलग कर देंगे। उसके बाद एक टी को यहाँ से पिक करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करने हैं, मैं गैमिट्स बनाने का तरीका, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं गैमिट्स बनाने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसमें F2 के लिए F1 में क्या गैमिट्स बनेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कैपिटल टी, जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन अगर आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर इस तरह का कंडीशन आ रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हम बनाएंगे इसका गैमिट्स। देखो सबसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग कर देंगे, हालांकि ये रफ वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग कर देंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों आर से कर देंगे तो हमको दो तरह के गैमिट्स मिल जाएंगे। क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। तो ये दो तरह के हमारे गैमिट्स तैयार हो गए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर बारी बारी से दोनों आर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमको चार तरह के गैमिट्स, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो F2 के लिए, हमेशा F2 के लिए चार तरह के गैमिट्स बनेंगे। F1 में तो एक ही तरह के, F1 में P1 से सिर्फ एक ही तरह के गैमिट्स बनेंगे, लेकिन F2 में चार तरह के गैमिट्स बना देंगे एक ही प्लांट से। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको तुम अपने हिसाब से लिख लेना। अब आगे आते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आल। ठीक है, कैपिटल में डी हो जाएगा, आल। चलो आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन, इसमें से कह रहा है कौन जीन से कंट्रोल नहीं होता है। वेट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन, ओनली वन, समटाइम्स 1 and 2। कह रहा है इसमें से कौन जीन से कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ एक ही कंट्रोल होता है जीन से, वो है वेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सॉरी, ये होता है हाइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, और ओनली वन भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी और ए में से केवल एक, यानी कि हाइट ऑफ पर्सन जो है ये जीन से कंट्रोल नहीं होता है। सॉरी, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कौन इसमें से जीन से कंट्रोल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जीन से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जीन से कंट्रोल नहीं, वेट ऑफ अ पर्सन ये जीन से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट, क्या है, द रूल ऑफ डिटरमिन। कह रहा है द रूल ऑफ डिटरमिन। अब ऑफ में क्या भरा जाएगा, डिटरमिन्स द प्रोसेस बाय विच द ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। कौन सा रूल्स भाई, कौन सा रूल्स पूछ रहा है, रूल्स ऑफ हेरिडिटी।
ठीक है। रूल्स ऑफ हेरिडिटी है, रूल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, नन ऑफ दिस, ये सब कोई मतलब नहीं, रूल्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, ऑप्शन क्या भरा जाएगा, रूल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। रूल्स ऑफ हेरिडिटी जो है ये डिटरमिन करता है द प्रोसेस बाय विच ट्रैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे इनहेरिटेंस रहता तो ये प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पे रूल्स पूछ रहा है, हेरिडिटी का रूल्स जो है यहाँ भरा जाएगा, 37 का ए हो जाएगा सही। आते हैं 38 पे, डीएनए इज इंफॉर्मेशन, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग, क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, कई बार बताया जा चुका है। डीएनए क्या करता है, डीएनए है बॉडी का, ठीक है, ये हमेशा प्रोटीन बनाता है, ये बॉडी में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हमेशा ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन कहीं भी रहे प्रोटीन, चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे, जो भी प्रोटीन रहेगा हम आपको प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो डीएनए हमेशा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ दिस एंजाइम वर्क इज इफिशियंटली देन, कह रहा है कि एंजाइम अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तब क्या होगा। अ लॉट ऑफ हार्मोन्स इज मेड, अ प्लांट विल बी टाल, बोथ एंड ए एंड बी नन। देखो हार्मोन्स भी जो है अच्छे से काम करता है, एंजाइम रहेगा तो हार्मोन्स अच्छे से काम करेगा। प्लांट्स के टालनेस के लिए, यानी कि बोथ कैरेक्टर्स, यानी कि ए एंड बी दोनों के लिए एंजाइम नेसेसरी है। ठीक है, हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए और किसी भी ऑर्गेनिजम्स के टालनेस के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। देखो बॉडी में जितने भी हार्मोन होते हैं, ठीक है, बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं, ये हार्मोन एंजाइम ये सब क्या है, प्रोटीन है, और इनकी सिंथेसिस भी कौन करता है, डीएनए करता है। ठीक है, इसकी इनकी सिंथेसिस भी डीएनए करता है। इसके अलावा अगर कोई टाल है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन बना है, कोई ड्वार्फ है तो इसमें कम प्रोटीन बना है, तो इसके टालनेस के लिए भी प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईच सेल्स हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोजोम्स, कह रहा है कि सभी सेल्स में 2 कॉपी होती है एक एक क्रोमोजोम्स की, वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, फ्रॉम मेल पेरेंट्स, फ्रॉम फीमेल एनी ऑफ द वो, ये सब नहीं होगा, ये कई बार ऊपर बताया गया था, पेरेंटल कैरेक्टर्स के केस में बताया गया था, एक पैटर्नल होगा तो दूसरा मैटरनल होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट। इसको आप कई बार देखो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी कोई चाइल्ड है तो इसमें मम्मी और पापा दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। मैन हैव, कह रहा है कि किसी इंसान में, कह रहा है किसी इंसान में, वो भी मेल की बात कर रहा है। ठीक है, ये सिंबल जो है मेल का होता है। मेल हैव अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, कितने पेयर्स होते हैं भाई, कितने होते हैं, मिसमैच्ड, कहता है परफेक्ट पेयर तो होता नहीं, क्योंकि मेल में एक्स वाई होता है तो ये मिसमैच होता है, मैच तो होता नहीं, परफेक्ट पेयर भी नहीं है, यानी ए नहीं है। ठीक है, ये ए नहीं है। ठीक है, तो क्या है, मैच पूछ रहा है, मैच भी नहीं होता है भाई, दोनों एक्स नहीं है ना दोनों वाई, मिसमैच क्रोमोजोम्स, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मेल में क्या होता है, मिसमैच पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। ठीक है, यही फीमेल होता तो एक्स एक्स होता, तो ये परफेक्ट पेयर हो सकता था, मैच पेयर हो सकता था। चलो आते हैं इस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मिसमैच होगा। इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, यहाँ मैं वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क कॉपी में इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया, अ कैरेक्टर्स इज एक्सप्रेस इन हाइब्रिड ऑलवेज, इन हाइब्रिड इज ऑलवेज, कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टर्स जो है हाइब्रिड में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो पहले मैं आपको हाइब्रिड का और प्योर का, देखो जनरल लैंग्वेज में दो ही टर्म होता है, हाइब्रिड एंड प्योर, दोनों का मतलब समझा दे रहे। जैसे कोई जीन ए है डोमिनेंट के लिए और दूसरा जीन है रिसेसिव के लिए स्मॉल ए, ठीक है, तो इससे हमको मैक्सिमम 3 पेयर्स बन सकते हैं। कौन कौन, कैपिटल ए, ठीक है, इसके बाद स्मॉल ए, फिर एक बनेगा पेयर कैपिटल ए स्मॉल ए का। तो यहाँ पे जो 3 जो पेयर्स बने हैं, इसमें से ये जो पेयर्स दिख रहा है इसको बोलेंगे होमोजाइगस पेयर। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस पेयर। ये भी पेयर है, इसको भी बोलेंगे होमोजाइगस पेयर। होमोजाइगस क्यों, जब दोनों जीनोटाइप कैपिटल में हो या दोनों जीनोटाइप स्मॉल में हो, ठीक है, इसको बोलेंगे होमोजाइगस। और अगर एक होमोजाइगस में और दूसरा हेट्रोजाइगस में, एक जो है कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में हो, यानी इस तरह का हो, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है,
तो ये तो बायोलॉजी के लैंग्वेज में, जेनेटिक्स के लैंग्वेज में हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर जनरल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो होमोजाइगस को ही प्योर लैंग्वेज, प्योर जो है जीन बोला जाता है। ठीक है, होमोजाइगस जो जीन होता है वो हमेशा प्योर होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, और हेट्रोजाइगस जो होता है, हेट्रोजाइगस को जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो हो जाएंगे अपने कैरेक्टर्स के लिए प्योर हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये अपने आप के लिए क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो ऐसे ही तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला होगा, एक ऐसे जीन आया था कैपिटल टी, एक आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आया था स्मॉल टी। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 42 के लिए मैं वर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 42 में मैंने ये दे दिया है आपको, 3 मैंने टर्म दिया है। कौन कौन सा टर्म? टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। ठीक है, टर्म नंबर 1, 2, 3 में से हमको ये बताना है कि कौन हाइब्रिड होगा और कौन प्योर होगा। ठीक है, किस बेस पे बताना है? इसी की बेस पे इसको बताना है कौन हाइब्रिड होगा, कौन प्योर होगा। चलो अब आते हैं, हम ये बता देते हैं कौन इसमें से टाल होगा, कौन इसमें से ड्वार्फ होगा। देखो, सबको पता है कि डोमिनेंट जीन अगर वो सिंगल फॉर्म में है, ठीक है, दूसरा जीन क्या है कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर डोमिनेंट जीन कोई सिंगल फॉर्म में है तो वो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। यानी कि ये दोनों में देखो कैपिटल टी है, इसमें कोई कैपिटल टी नहीं है, इसमें जो है कोई कैपिटल टी नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कैपिटल टी जरूर है। दूसरा क्या है? कोई मतलब नहीं, इसमें तो दोनों कैपिटल टी है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। एक ही जीन जितना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उतना ये भी, तो ये उस समय तक कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि ये 6 फीट का करेगा तो ये 6 फीट का, तो दोनों जोड़ के 12 फीट का, नहीं, कोई एक ही इफेक्टिव होता है। तो ये कैपिटल टी इफेक्टिव है तो ये टाल कर देगा, ये भी टाल हो जाएगा, लेकिन ये ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये हाइब्रिड में रहे, स्मॉल टी अगर हाइब्रिड में रहे, देखो यहाँ पे भी स्मॉल टी है, ये हाइब्रिड में रहे तो इसका एक्सप्रेशन होता ही नहीं। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन होता ही नहीं, लेकिन ये अगर प्योर कैरेक्टर्स में रहे तभी इसका एक्सप्रेशन होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि अ कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन हाइब्रिड इज ऑलवेज, कह रहा है कौन सा कैरेक्टर्स हाइब्रिड में भी एक्सप्रेस हो सकता है, ऑलवेज एक्सप्रेस, यानी कि हमेशा हाइब्रिड में भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट हाइब्रिड में भी एक्सप्रेस हो जाता है। प्योर में तो होता ही है, प्योर में तो ये भी होता है, कौन? टाल भी होता है, ड्वार्फ भी होता है, लेकिन हाइब्रिड में डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी कि अगर ये कोई कॉन्सेप्ट है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो ये हाइब्रिड कैरेक्टर्स है, इसमें टाल हो जाएगा, जो भी कैरेक्टर्स आएगा वो टाल हो जाएगा। यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर्स ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल टी में स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर्स है, लेकिन टाल ये ड्वार्फ नहीं कर पा रहा है, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है हाइब्रिड में एक्सप्रेस नहीं होता है। को डोमिनेंस और एपिस्टेसिस का कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 10th में नहीं है, ये 12 में है। तो 10th वाले स्टूडेंट इसको छोड़ दें, इसके बारे में भी छोड़ दें, इसके लिए भी छोड़ दें कि इसका कोई मतलब भी निकलता है। सिर्फ आपके सिलेबस में डोमिनेंट एंड रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है हाइब्रिड सिचुएशन में एक्सप्रेस होता है, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमेशा हाइब्रिड में एक्सप्रेस हो जाता है, प्योर में तो सब एक्सप्रेस होते हैं। चलो आते हैं, जैसे एक डायलॉग है ना, भीड़ में तो सब आते हैं, अकेला शेर आता है। चलो आते हैं नेक्स्ट 43। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर जनरेशन, दिस इज एसेंशियल ऑफ द आइडिया ऑफ, कह रहा है फ्रीक्वेंसी जो है कुछ जीन्स का हर एक पॉपुलेशन में बदलता रहता है। ठीक है, ये आइडिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है इसको बोलते क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, जो इस साल सिलेबस में नहीं है, हालांकि ये बाय मिस्टेक्स आ गया है, बट आपको ये जानना है कि अगर हर एक जनरेशन में जीन्स का जो फ्रीक्वेंसी वो बदल जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाए, तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? उसके बाद रिजल्ट होगा इवोल्यूशन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? द एक्सचेंज इन जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, कह रहा है कि एक्सचेंज इन जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। देखो, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो है सिमिलर काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स में कभी नहीं होता है। जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो कहाँ पे? मेला करने। ठीक है, तुम जा रहे हो मेला करने, तुम्हारे पास जो झोला है वो झोले में 5 किलो की चीज़ आ सकती है। तो तुमको लग रहा है हमारा झोला छोटा है, तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई चल रहा है जिसके पास भी 5 किलो का झोला है। ठीक है,
तुम्हारे पास भी 5 किलो का झोला है, तुम्हारे भाई छोटे भाई के पास भी 5 किलो का झोला है, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई दिखा नहीं रहा है। बट तुम क्या सोच रहे हो कि अपना झोला हम इसको दे दें ताकि इससे 10 किलो वाला झोला हम अपने ले लें। बट तुमको जब ये मालूम चल गया कि इसके पास भी वही 5 किलो का झोला है, तो फिर एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी जो है सोचेगा कि इसके पास जो है बड़ा, इसके पास छोटा झोला है, अगर मेरा झोला छोटा है, ठीक है, तो मैं सामान उठा लूँगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, और बड़ा झोला है तो आते समय सामान लेकर के दिक्कत होगी, ज़्यादा बड़ा झोला होगा तो ज़्यादा सामान होगा। लेकिन इसको पता चला कि इसके पास भी 5 किलो का झोला है, तो ये भी एक्सचेंज करने का विचार अब नहीं करेगा। सिमिलरली अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स हो, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स कहाँ से आते हैं? एक पेरेंट से आते हैं, ठीक है, एक पेरेंट से सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स आते हैं, और डिफरेंट पेरेंट से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स आते हैं। अगर दो पेरेंट्स हैं, जैसे एक पेरेंट्स ये है और दूसरा पेरेंट ये है, ठीक है, तो इससे जो क्रोमोजोम आएगा वो दूसरे नेचर का होगा, और इससे जो क्रोमोजोम आएगा वो दूसरे नेचर का होगा। तो इसमें एक्सचेंज करने का सवाल नहीं उठता। और एक पेरेंट्स किस में इन्वॉल्व होता है? एक पेरेंट होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और दो पेरेंट किस में इन्वॉल्व होता है? दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो इसमें एक्सचेंज करने की बात होती है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें नहीं है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द एक्सचेंज इन जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किस में ज़्यादा पॉसिबल है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें तो सवाल ही नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो साफ कह दिया है, ये भी सवाल नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यानी कि सी ऑप्शन से। बडिंग भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब ए सेक्सुअल का कंटेंट है, और उसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। एक पेरेंट्स होगा तो एक ही तरह के क्रोमोजोम्स बनेंगे, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। एज वी नो दैट व्हेन द टू जीन्स or two genetic material comes from the two different types of parents, then they are possibly to exchange their genetic material, because the content of genetic material are different in two different parents. While the parents if form the two different types of chromosomes, then there is no chance of exchange, because both chromosomes come from the similar parents, so that there is no need to exchange the genetic material. आप अपने लैंग्वेज में इसको क्वेश्चन नंबर 44 को कॉपी में जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, और ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। इसके बाद शुरू होगा असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके बाद आपका शुरू होगा फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन, ठीक है। एक क्वेश्चन है 46 भी है, 46 को भी सॉल्व करा दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? फॉर एवरी हार्मोन देयर इज जीन, ये सही है। हर एक हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। हार्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। जितने भी प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं, वो सब क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सब के सब प्रोटीन होते हैं। तो सभी तरह का हार्मोन्स जो होता है वो प्रोटीन होता है, और सभी प्रोटीन्स के लिए क्या है? एक एक एंजाइम है, ठीक है। आगे क्या है? फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज जीन्स, कह रहा है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं एक एक उसके लिए जीन्स होता है, ये भी सही है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन्स, ये भी सही है। यानी कि मैंने क्या बोला कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं, सबके लिए एक एक प्रोटीन होता है, और सभी तरह के प्रोटीन के लिए एक एक जीन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? फॉर एवरी हार्मोन्स देयर इज जीन्स, सभी तरह के हार्मोन्स के लिए एक जीन्स होता है, ये भी सही है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज जीन्स, सभी तरह के प्रोटीन के लिए एक जीन्स होता है, ये भी सही है भाई। सभी तरह के प्रोटीन, सभी तरह के हार्मोन्स के लिए एक प्रोटीन बोलो, या सभी तरह के प्रोटीन के लिए एक जीन्स बोलो, या डायरेक्ट बोल दो सभी तरह के हार्मोन्स के लिए एक जीन्स, ठीक है। लास्ट क्या पूछ रहा है? फॉर फैट मॉलिक्यूल्स देयर इज जीन्स। देखो फैट का सिंथेसिस ये जीन्स में नहीं होता है, डीएनए के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में बताया गया था, ये साइटोप्लाज्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। लास्ट का क्रोमोजोम है द मेलनेस ऑफ चाइल्ड इज डिटर्मिन बाई, हालांकि ये कई बार हो चुका है, ये आपको लिए मैं वर्क दे दे रहा हूँ। 46 का आंसर सबको बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 46 सबका क्लियर हो गया होगा। ये मैंने 5 वीडियो में 5 पार्ट में एमसीक्यू को सॉल्व इसलिए कराया क्योंकि ये जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक शुरू होगा। ये पोर्शन असर्शन रीजन,
सॉरी असर्शन रीजन शुरू होगा, जो वीडियो नंबर 6 ऑनवर्ड ये शुरू करेंगे हम। थैंक यू।